Hello, good evening all. I'm again back with some video related to diabetes. Previously, I had taken or I had done a talk on the gut-brain axis, that is how your gut and the brain have a bidirectional connection, how the gut affects the brain, how the brain response affects the body and the gut. So in that, actually, in a summarized manner, I can say that I actually discussed about the importance of the food you eat, how you cook, and at what time you're eating, and the variety of food, how you're cooking it. Everything actually affects the gut, the good bacteria, and that is when the chemicals are secreted by the good bacteria, which are sensed by the brain through the various nervous system, and this actually leads to the response to the food you're eating. So there is a connection between the brain and the gut, and I discussed about the various disorders that can result due to the problem in the gut, due to the decrease in the healthy gut bacteria, or due to some problem in the gut. Okay, so these diseases can range from various you can say names which you might have heard, like diabetes mellitus, then we have obesity, then we have the dementia, depression, psychiatric problems, and these Alzheimer's. These are very strange that they are linked to our gut, but yes, that's true that whatever you're eating is actually affecting your mental status. So good mental health actually depends upon how healthy your gut is, and how healthy the gut bacteria present in the gut is. And you have to avoid the use of various probiotics, antibiotics, okay, processed food, then refined food, okay, canned food. You have to take a lot of fiber. All this was discussed in that video. Now today I'm back again with some discussion on diabetes mellitus. Now diabetes mellitus is actually a very you can say important disease, as it is very, very common in the developing world and as well as in the developed countries. And there are various myths related to diabetes in our diabetic population. People who become diabetic, they think that there is a problem only with their glucose. That is, they think that either genetically they are predisposed, that's why they're getting this disease, or they have an inclination to eat a lot of carbohydrate rich food or sugar. ठीक है, मिठाइयाँ बहुत खाते हैं इसलिए हमें हो गया डायबिटीज़. ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में यही बोलते हैं लोग कि हमने मिठाइयाँ बहुत खाई तो हमें डायबिटीज़ हो गई, बहुत सारी मिठाई खाने का शौक़ है हमें. ठीक है, सो इट्स ओके, उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने वो आंसर दिया है, फाइन. बट सी, थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. ठीक है, पहले तो ये है कि इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि डायबिटीज़ कैसा टाइप का डिजीज़ है. सो डायबिटीज़ इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में जो आपके फूड प्रोडक्ट्स का जो ब्रेक डाउन होता है, यूसेज होता है, स्टोरेज होता है, डाइजेशन होता है, कैसे वो प्रोसेस हो रहा है, कैसा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का, उन सब का एक कनेक्शन होता है. ठीक है, व्हेन यू आर हेल्दी दिस कनेक्शन इज़ बैलेंस्ड. ठीक है, जो एक्सेस है वो स्टोर होगा और जब आपको चाहिए तो वो मोबिलाइज हो जाएगा. डिफरेंट हार्मोन्स के लेवल्स पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट जब आप पूरा खाना खा के बैठे होते हैं, लाइक आपने फूड अच्छे से खाया, तो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो हार्मोन सिक्रीट होती है दैट इज़ इंसुलिन. एंड अगर आप स्टार्व्ड हैं या आपने फास्टिंग करा है, ठीक है, तो आपकी सर्कुलेशन में ज़्यादा हार्मोन जो रहेगा वो है ग्लूकागन. दोनों हार्मोन्स में बहुत फ़र्क है. इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो कि चीज़ों को बचाता है, स्टोर करता है, यूज़ करने की तरफ ले जाता है. दैट इज़ वो उन सब की जो वैल्यूज़ हैं या उन सब का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको रेगुलेट करेगा. इफ़ यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट देन द ग्लूकोज विच इज़ जनरेटेड दैट विल बी रेगुलेटेड बाय इंसुलिन. ठीक है, इट विल रेगुलेट द
सर्ज इन द ग्लूकोज आफ्टर यूर ईटिंग अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील, तो वो लिवर की तरफ ग्लूकोज को ले जाएगा, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा जो बाद में यूज़ हो सकता है आपको जब एनर्जी चाहिए, ठीक है। या स्केलेटल मसल्स के पास ले जाएगा जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तब वो एनर्जी देगा उनको, ठीक है। और या फिर एडिपोज टिश्यू में ले जाएगा जो फैट डिपोट्स होते हैं जहाँ फैट स्टोर होता है, और जब यूज़ करना हो तो वहाँ से वो मोबिलाइज हो जाता है। तो 3 जगहों पे एक्ट करता है ये, एक लिवर जहाँ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा ग्लूकोज, एक स्केलेटल मसल्स जहाँ वो यूज़ होगा एक्सरसाइजिंग मसल्स के लिए, एनर्जी देने के लिए, एंड एक है एडिपोज टिश्यू जहाँ वो स्टोर होगा फैट डिपोट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये 3 जगह होता है जहाँ पे वो एक्ट करता है। ये हम बोलते हैं ग्लूकोज डिपेंडेंट टिश्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन इस तरीके से वर्क करता है। ग्लूकागन तब वर्क करेगा जब आप खाना नहीं खाए हो, जैसे फास्टिंग है या फिर आपने स्टारवेशन की कंडीशन है, फूड नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज रिलीज़ करेगा, फैट्स को ब्रेक डाउन करके उसके कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम फ्री फैटी एसिड बनते हैं, वो बेसिकली फ्री फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स, वो एक्चुअली ब्रेक हो रहा है फैट, तो वो अपने आप अपने बिल्डिंग ब्लॉक में ही रिलीज़ होगा, दैट इज़ फ्री फैटी एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटीन्स है तो अमीनो एसिड्स रिलीज़ होंगे, तो ये सब फिर मोबिलाइज हो जाते हैं एंड एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो 2 हार्मोन्स का इफेक्ट हमारी बॉडी में रहता है। नाउ व्हाट हैपन्स इन डायबिटीज़, जो हम कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है ये, जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि इट इज़ नॉट वन थिंग कि आपका ग्लूकोज बढ़ गया और आप डायबिटिक हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप डायबिटिक बेसिकली कब होते हैं, आपका एक हिस्ट्री होगा। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है ओबेसिटी। अगर आपकी बॉडी में वेस्ट हिप रेशो बढ़ गया है, यानी वेस्ट को सराउंड करता हुआ जो फैट है, जिसे हम विसरल फैट या एब्डोमिनल फैट कहते हैं, वो इंक्रीज हो गया है, देन यू बिकम प्रोन टू अ कंडीशन नोन एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वो एक पॉइंट है उसमें। दूसरा है जहाँ आपके लिपिड लेवल्स, लिपिड्स मतलब फैट, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है जो डायरेक्टली आपको डाइट से मिलता है, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं लिपिड्स के, वो आपके इंक्रीज्ड हैं। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसलिपिडीमिया, यानी आपका जो फैट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज्ड है, ठीक है। जनरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो ये कंडीशंस है। उसके साथ साथ आपका ग्लूकोज जो है वो एक नॉर्मल रेंज में नहीं है, वो एक ऐसी रेंज में है जो थोड़ा हायर साइड है। कुछ गाइडलाइंस होती हैं जैसे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन देता है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपका ग्लूकोज लेवल मोर देन 100 है एंड लेस देन 125 है या उसके अंदर है, तो आपका ग्लूकोज इम्पेयर्ड ग्लूकोज कहलाएगा। अगर आपका ग्लूकोज जो फास्टिंग लेवल है अगर वो 126 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हो सकते हैं। और अगर लंच के 2 घंटे बाद हम मेजर करें, दैट्स नोन एज पोस्ट प्रेंडाइल ग्लूकोज, तो वो अगर लेवल अबव 200 है तो आप डायबिटिक कहलाते हैं। और अगर 140 से 199 के सेंटर पे है पीपी, दैट इज पोस्ट प्रेंडाइल आफ्टर 2 आवर्स ऑफ लंच, तो आप इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल में आते हैं, ठीक है। तो एक बहुत थिन लाइन है, ठीक है। जैसे ये फैक्टर्स हैं, लेकिन लिपिड्स आपके सही नहीं चल रहे, ओबीज हैं आप, फैमिली हिस्ट्री है, तो यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक्स भी आपका वर्क करता है। अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स डायबिटिक हैं, ठीक है, तो जो जीन्स हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, या फिर वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इंटरेक्ट करके डोमिनेंट हो सकते हैं, आप डायबिटिक हो सकते हैं आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। उसमें कई चीज़ें रोल प्ले करती हैं, जैसे मैंने बताया फैक्टर ओबेसिटी, प्लस आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे आप सपोज यू आर इन अ जॉब वेयर यू हैव टू डू अ सिटिंग वर्क, तो एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी आपको एक रिस्क में डाल सकती है। ब्लड प्रेशर हाई है, आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम कर रहे हैं, ठीक है, और स्मोकिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आपका डाइटरी हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, यू डोंट डू एनी एक्सरसाइज, तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स प्लस द जेनेटिक्स प्लस सम काइंड ऑफ यू नो मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन जिसे हम कहते हैं, लिपिड्स का हाई होना, एंड आपकी बॉडी में इम्पेयर्ड ग्लूकोज होना, ये सब आपको एक डायबिटिक बनाने के लिए काफ़ी है, ठीक है।
तो बेसिकली डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि मैं चीनी खाती हूँ या शुगर खा रही हूँ तो मैं डायबिटिक बन जाऊँगी। ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, रादर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है जो बहुत कुछ आपके हाथ में है, होना नहीं होना। ठीक है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यू हैव टू टेक केयर कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें, डाइट्स आप प्रॉपर लें। ठीक है, शुगर कार्ब्स को कट करें, प्रोसेस फूड को कट करें, फाइबर रिच डाइट ज़्यादा लें, एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें, स्मोकिंग छोड़ दें अगर करते हैं तो, अल्कोहल छोड़ दें, हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी मेडिकेशंस लें, एंड अगर आपका माइल्ड हाइपरटेंशन है तो फिर आप उसको देखें कि आप स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंसिव तो नहीं हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा कंट्रोल करें तो हो सकता है आप इम्पेयर्ड में पहुँचे लेकिन आप डायबिटिक नहीं बनेंगे, आप वापस रिवर्स होकर नॉर्मल भी हो जाएंगे। सो डोंट थिंक कि मेरा ग्लूकोज लेवल 1 या 2 टेस्टिंग में हाई चला गया है, बॉर्डर लाइन पे आ गया है तो मैं डायबिटिक बन गया, एंड यू थिंक ऑफ फोर्स मेडिकेटिंग योर सेल्फ। नो, don't try to start medications instantly. Wait, check your glucose after certain modifications which you think are not up to the mark and you have to make those changes in your life. तो वो आप changes करो, फिर आप अपना ग्लूकोज लेवल चेक करो एंड फिर आप कंफर्म करो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेसिकली, जैसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, जैसे जो 40 ईयर्स एंड अबव की एज में हो जाता है, तो वो डायबिटिक कंडीशन जो है डिपेंड करेगी आपकी जेनेटिक्स एंड आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका जो पैनक्रियाज है एक ऑर्गन होता है जिसमें कुछ सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, और वो रिस्पॉन्स कब आता है, जब आप ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले रहे हैं। तो वो ग्लूकोज जब आपके सेल में एंटर होगा थ्रू सर्टन चैनल्स, तो वो फिर इंसुलिन के रिलीज़ को प्रमोट करेगा। बीटा सेल्स में जो है ग्लूकोज कैसे एंटर होता है, थ्रू सम ट्रांसपोर्टर्स, जैसे हम बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 1 और 2, ये नाम है, एक अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हर अलग अलग टिश्यूज़ के ऊपर। तो पैनक्रियाज में उन ट्रांसपोर्टर्स से जब ग्लूकोज एंटर होता है तो इंसुलिन का रिलीज़ कुछ कुछ पोर्शंस में होता है, इंस्टेंटली नहीं होता है। ठीक है, और वो रिलीज़ भी कुछ चैनल्स के ओपन होने से होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन पे कुछ आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है एंड वो इवोक करता है इंसुलिन के रिलीज़ को। उस ग्लूकोज के रिस्पॉन्स से इंसुलिन रिलीज़ हुआ और वो फिर दूसरे टिश्यूज़ जैसे स्केलेटल मसल है, लिवर है, वहाँ पे एडिपोज टिश्यू में जब ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है तो इंसुलिन उन टिश्यूज़ के रिसेप्टर्स पे इंटरैक्ट करेगा और फिर वो कुछ एक्टिविटी से कुछ सेल के अंदर कंपाउंड्स होते हैं उनको केमिकली मॉडिफाई करेगा एंड वेरियस प्रोसेसेस को स्टार्ट करेगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के। तो उसका एक पर्पज़ यही होता है कि ग्लूकोज को यूज़ किया जाए, ग्लूकोज को स्टोर किया जाए। ठीक है, स्केलेटल टिश्यूज़ पे अगर इंसुलिन एक्ट करेगा थ्रू रिसेप्टर तो वो उसकी यूसेज को बढ़ाएगा, एक्सरसाइजिंग मसल्स में स्टोर भी करवाएगा, लिवर में वो स्टोर करेगा, एडिपोज टिश्यू में जो है वो फिर उसके कन्वर्जन में हेल्प करेगा, ट्राइग्लिसराइड या फैट के फॉर्म में वो स्टोर। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी याद रखिए कि जब आप ज़्यादा ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो बेसिकली यू आर मेकिंग मोर ऑफ फैट। ठीक है, ये चीज़ लेमैन के लिए बहुत मुश्किल है समझना, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज हम कहते हैं ना, अरे यार मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ, मैं शुगर खाता हूँ, मैं मिठाइयाँ खाता हूँ, फैट थोड़ी खा रहा हूँ, घी तो मैं बिल्कुल नहीं खाता, तेल भी नहीं खाता हूँ, फैटी चीज़ें तो मैं खाता ही नहीं हूँ, तली भुनी कुछ नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ मिठाई का शौक़ है यार, मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है। बट आपको पता है जब ग्लूकोज ब्रेक होता है, ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी देने के लिए, तो एक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसको हम एसिटाइल कोएंजाइम ए बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री लैंग्वेज में। एंड वो एसिटाइल कोएंजाइम में एक्चुअली एक ईंट है या ब्रिक है टू फॉर्म द फैट। वो फैट बनाने के लिए ईंट का काम करता है। ऐसी बहुत सारी ईंटें इकट्ठी होती हैं तो फैट बन जाएगा। तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज उतना ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम है और उतना ज़्यादा फैट बनना चालू हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली फैट भी बना रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमको कि हम डाइट में
कार्ब्स को तो कट करके ही रखें। हर फूड में कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको डायरेक्टली चीनी या शुगर खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको कंट्रोल में रखो। तो इंसुलिन का रिलीज़ हुआ, इस तरीके से कंट्रोल हुआ। अब डायबिटीज़ में क्या हुआ, इंसुलिन तो हाई है, सिक्रीट हो रहा है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं आ रहा। उसका रीज़न क्या है, जो टिश्यूज़ ग्लूकोज को इंसुलिन का अपटेक करते हैं वो बेसिकली सेंसिटाइज नहीं कर रहे हैं इंसुलिन को, वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। उनको पता नहीं चल रहा कि इंसुलिन है, तो ग्लूकोज यूज़ नहीं हो रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एंड कंटिन्यूस हाइपरग्लाइसीमिया बना हुआ है एंड ग्लूकोज लेवल हाई है ब्लड के अंदर। तो ये कंडीशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो हम एडल्ट डायबिटीज़ या जो 40 ईयर अबव जो डायबिटीज़ डेवलप होती है, हम उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़, वेयर देयर इज़ मच इंसुलिन बट देयर इज़ रेजिस्टेंस। पर क्या होता है, एक लेवल के बाद हमारे पैनक्रिया के जो सेल्स हैं इंसुलिन बना 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 के थक जाते हैं, इंसुलिन वर्क नहीं कर रहा, लेकिन ग्लूकोज तो हाई है ना, तो उनको एक मैसेज तो जाता है कि ग्लूकोज तो यूज़ नहीं हो रही है, तो यार इंसुलिन कम पड़ रहा है शायद, तो वो और इंसुलिन बनाता जाता है। लेकिन उस कंडीशन में भी हमारा ग्लूकोज जो है वो कंट्रोल नहीं होता, एंड वो बीटा सेल्स थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड लास्ट में इंसुलिन का जो रिलीज़ है वो भी कम हो जाता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, चेक 2-3-4 बार नहीं करेंगे, डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, अपने और दूसरे पैरामीटर्स पे ध्यान नहीं देंगे, लिपिड्स पे और खाने पीने पे, लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे, ये ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा और फिर एक कंडीशन जो है वो एक फुल ब्लोन डायबिटीज़ हो जाएगी, और फिर इसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर मेडिकेशंस आपका अल्टीमेट फोकस रहेगा, थ्रू मेडिकेशंस आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड बाकी जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लेकिन देयर इज़ नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ कि आपको डायबिटीज़ हो गया है तो लाइक अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अभी आपको मेडिसिन तो लेनी पड़ेंगी एंड वो रिवर्स भी नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करो, बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ डायबिटीज़। अगर आपको डिटेक्ट हुई है एंड आप इस स्टेट पे हो कि आपकी मेडिकेशन स्टार्ट करनी है डॉक्टर को, ठीक है, बिकॉज दे हैव चेक द ग्लूकोज लेवल्स 3-4 टाइम्स, एंड कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो आपको मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। पर इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर और थोड़ा आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लाते हो, पॉजिटिव रहते हो, अपने गट को हेल्दी रखते हो, तो आपका ये कंडीशन काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा, एंड हो सकता है मेडिकेशंस भी स्टॉप हो जाएं। ओके, सो नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, नथिंग टू बी लाइक पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है। वंस यू हैव बीन डिटेक्टेड विद दैट द डायबिटीज़, इट्स फाइन, देन यू हैव टू वर्क ओवर रिवर्सिंग इट, जो हो सकता है आराम से। आपको अपना ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है, ग्लूकोज हाई नहीं रहना चाहिए कंटिन्यूसली, ठीक है। गेट इन टच विद योर डॉक्टर व्हेन यू हैव एनी प्रॉब्लम, एंड डोंट बी स्केयर्ड ऑफ इट, ठीक है। दूसरे फैक्टर्स भी आप देखो, कुछ सिम्टम्स भी आते हैं जब डायबिटीज़ होता है, लाइक यूरिन ज़्यादा बनता है, पॉलीयूरिया बोलते हैं, भूख ज़्यादा लगेगी, पॉलीफेजिया, एंड माइट भी ओबेसिटी है, बट बाद में पर्सन में वेट लॉस हो रहा है क्योंकि मसल प्रोटीन यूज़ होने लग जाता है, तो थोड़ा वेट लॉस होने लगता है। तो ये कंडीशंस होती हैं, तो वो इंडिकेट कर सकती हैं देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इनसाइड यू, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, विजिलेंट रहो, वर्क ओवर योर प्रॉब्लम इफ़ यू हैव डायबिटीज़, एंड ब्रिंग सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। डाइटरी हैबिट्स हैं, एक्सरसाइज है, एंड जो भी अगर आपके प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन या स्मोकिंग का, ठीक है, वो सब आपका चेक में रखो, ठीक है। देन यू कैन डेफिनेटली रिवर्स दिस कंडीशन। अगर आप इम्पेयर्ड कंडीशन में आते हो, थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल हाई है, एंड देन देयर इज़ नो नीड टू स्टार्ट मेडिकेशन, माइट बी ड्यू टू सम स्ट्रेस फैक्टर या कुछ टेम्प्रेरी फेज में आपका किसी वजह से ये इंक्रीज़ हो गया है, तो वो कुछ मॉडिफिकेशंस डाइटरी इंटरवेंशन से रिवर्स हो सकता है। सो डोंट गो फॉर फोर्स मेडिकेशंस, डोंट पैनिक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका गट बैक्टीरिया हेल्दी होना चाहिए। बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। इफ़ यू कीप अ गुड healthy bacterial population in your gut, then I think the diseases will be kept at bay. So have a healthy diet, have a healthy mind, and stay away from various diseases, and don't be scared of diabetes at all. This is in your hand.
how to keep your glucose levels in control, how to reverse the condition also. Everything depends on you. So with that note, take care. Bye.